Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, today date is 19 July, and I am teaching you chapter number 5, Food We Eat. Okay, now let us do little recapitulation what we have done in the previous video. Okay, so student, in the previous video I am explaining you about how we do the preservation of the food. हम फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं खराब होने से, ठीक है। सो क्योंकि जब बहुत ज़्यादा टाइम का हो जाता है ना, तो उस पर क्या होता है, जम्स का अटैक हो जाता है। एंड इफ द फूड इज इन्फेक्टेड बाय द germs, then if we eat that type of a contaminated food, then that food enter inside our body and we become sick. So here in previous video we discussed different methods what we can do. हमने different methods discuss किए कि how can we preserve the food for a long time. Okay, so few methods which I discussed with you, that is the first method is the adding salt. So by adding salt to the food items, you can preserve them. Okay, for example, you can add salt in the pickles and fish. तो डिफरेंट तरह के आप लोग अचार आपकी मम्मी लोग बनाती होंगी ना घर में, तो आप उसे लॉन्ग टाइम तक के लिए सेफ रख सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो बाय पुटिंग salt in that and in the fish also. Next discuss किया था boiling. So by boiling we can also preserve the food, but for a short time. You can't say that by boiling you can preserve the food for a long time. Short time तक आप food preserve कर सकते हो. जैसे आप देखते होगे whenever the milk come in your house, then what the mother do in the kitchen, she boil the milk. Okay, and after few hours again she boil the milk. So in this manner you can preserve the milk for a short period of time, and by boiling the milk, another benefit is that it kills the germs present in it. The germs which are present in the milk, that are killed due to boiling. So this is the second method we discussed. Next is the refrigeration and freezing. So food can be kept in the refrigerator and it may remains fresh for few days. ठीक है, आप बहुत सी वेजिटेबल्स मार्केट से लाके अपने रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो, उसमें आप मिल्क भी रख सकते हो, ईटेबल थिंग्स भी रख सकते हो, ठीक है। एंड इन दिस मैनर आल्सो यू कैन प्रिजर्व द फूड बिकॉज इन द कूल व्हेन द टेम्परेचर, बिकॉज इन द रेफ्रिजरेटर द टेम्परेचर इज लेस and low temperature is not a favorable condition for the germs, ठीक है, they are not active at low temperature. That is the reason we put things in the refrigerator so that we can use that food items for long time. Long time is for few days, long time is 1 month, 2 months, 1 year, that I am not saying, just for few days. After that we discuss about the adding sugar method. So this is also a method by adding sugar in food. It also acts as a preservative. So if we can store fruits in this form, बहुत से fruit, जितने भी fruit होते हैं इनके जैम्स बनते हैं बेटा, ठीक है। तो फ्रूट्स को हम
इस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं बाई एडिंग अ साल्ट। नेक्स्ट हमने डिस्कस इसमें लास्ट पॉइंट जो दिया था डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन मीन्स व्हाट इन दिस मेथड व्हाट वी डू, वी एक्सपोज द फूड टू द सनलाइट एंड व्हाट इन ड्यू टू सनलाइट व्हाट हैपन, द वाटर इज आउट फ्रॉम दैट फूड। जैसे आप लोग देखते नहीं हो, आफ्टर वॉशिंग द क्लोथ यू पुट दैट क्लोथ इन द सनलाइट, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट देयर इज नो वाटर लेफ्ट इन द क्लोथ। सो व्हाट हैपन, दिस इज बिकॉज दे ड्यू टू इवापोरेशन हो गया। वो क्या हो गया, इवापोरेशन हो गया उसका। सो इन द सेम मैनर इन दिस मैटर द फूड आइटम्स आर ड्राइड इन द सन टू स्टॉप ग्रोथ ऑफ जर्म्स इन देम। और इसमें क्या होता है, फूड से पूरा वाटर क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। So what are the food which can be stored in such a manner, such as raw mangoes, जो कच्चे आम है, कच्चे आम को सुखा के बनाया जाता है, ठीक है। फिश है, टोमेटो है, पोटैटो चिप्स कैन बी प्रिजर्व बाई दिस मेथड। And now let's start with the new topic, cooked and raw food. Now we will discuss today cooked and raw food. So if we are talking about the cooked food, so what happens when we cook the food? So first point, cooking makes food tasty. फर्स्ट पॉइंट व्हाट वी ओके कुक्ड, अगर आप लोग फूड को कुक्ड करते हो, इफ यू कुक द फूड देन व्हाट्स हैपन। सो स्टूडेंट व्हेन वी कुक्ड द फूड, कुकिंग मेक्स फूड टेस्टी। नेक्स्ट पॉइंट, फूड बिकम सॉफ्ट। फूड बिकम सॉफ्ट, जब आप फूड को, आपने कभी पल्सेस देखा होगा, राइस पल्सेस है, राइस है, ठीक है। सो ये चीज़ें क्या होती हैं, बहुत हार्ड होते हैं ये, लेकिन वंस इट इज कुक्ड देन इट बिकम टेस्टी आल्सो। एंड और टेस्ट लाने के लिए आपको स्पाइसेस ये सब डालना होता है, मसाले डालते हो आप, ऑयल में उसे कुक करते हो, ठीक है। ऐसे सिर्फ आप बॉईल करके टेस्ट के लिए बहुत चीज़ें डालते हैं भाई, साल्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस जो मसाले होते हैं, ठीक है। तो ऑयल आल्सो, बिकॉज वी कुक द फूड इन द ऑयल, सो देयर आर द मैनी थिंग्स विच वी पुट टू मेक द फूड टेस्टी। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुकिंग मेक्स फूड टेस्टी, फूड बिकम सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट, ठीक है। सॉफ्ट फूड बिकम, फूड हो गया, फूड बिकम सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट, ठीक है। फूड सॉफ्ट हो जाता है, इट इज इजी टू डाइजेस्ट एंड while cooking the food it also kills germs present in the food, ठीक है। कुक करके फूड खाने का नेक्स्ट क्या है एडवांटेज, सो इट बाय कुकिंग द फूड इट किल्स जर्म्स इन द फूड, इट also kills the germs present
in the it also kills the germs present in the food, और जो फूड में germs present है that also killed when we cook the food. So when we are talking about topic is food and raw food, what are the advantages? ठीक है, तो ये है सारी एडवांटेज ऑफ कुकिंग ऑफ फूड. कुकिंग मेक्स फूड टेस्टी, फूड बिकम सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट, इट आल्सो किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड. तो ये सब तो बेटा एडवांटेज है. और व्हाट इज द डिसएडवांटेज? देखो डिसएडवांटेज है कुकिंग फूड की कि व्हेन वी ओवर कुक्ड द फूड, अगर हम ज़्यादा कुक करते हैं फूड को तो उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो लॉस हो जाती है. ठीक है, जो क्योंकि हम फूड क्यों खाते हैं, व्हाई वी ईट द फूड? टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जितनी रिक्वायरमेंट है उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम लोग न्यूट्रिएंट्स खाते हैं. और जो न्यूट्रिएंट्स कहाँ मिलते हैं? इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए फूड. डिफरेंट टाइप्स के फूड में ये न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं. ठीक है, तो ये सारी एडवांटेज है कुक्ड फूड की. कुकिंग मेक्स फूड टेस्टी, food becomes soft and easy to digest, and while we cook the food it kills the germs present in the food also. तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है बेटा? ड्यू टू ओवर कुकिंग, अगर जरूरत से ज़्यादा हम कुकिंग करते हैं तो जो फूड की न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है फूड से. आप फूड को खाओगे लेकिन आपकी बॉडी को उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ओवर कुक्ड फूड कर दिया. इससे जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है उसकी वो क्या हो गई? लॉस. ठीक है, अनदर डिसएडवांटेज इसकी क्या है? व्हेन यू ईट द ग्रीन वेजिटेबल्स, सो बिफोर कटिंग द वेजिटेबल यू प्रॉपर्ली इन अ गुड मैनर यू वॉश द वेजिटेबल्स. ठीक है, आप वेजिटेबल को प्रॉपर ढंग से वाटर में क्लीन कर लो, वॉश कर लो. ओके, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, दे वॉश द वेजिटेबल देन दे कट द फूड एंड अगेन आफ्टर कटिंग दे वॉश द वेजिटेबल. सो इन दिस मैनर आल्सो मेनी न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट फ्रॉम द vegetables also in this form when you do this. So this is the disadvantage. ये क्या है बेटा इसका? ये क्या है इसका? ये इसकी डिसएडवांटेज है. अगर आप ऐसा करते हो तो ये क्या है? इसकी डिसएडवांटेज है. ठीक है, अब हम लोग डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं. डिसएडवांटेज ऑफ कुकिंग फूड. डिसएडवांटेज ऑफ कुकिंग फूड. ओके, so different cooking methods may destroy several
may destroy several nutrient may destroy several nutrients present in the food as well and the food loses its nutritive value. ठीक है. Different cooking method may destroy several nutrients present in the food. Okay. Different cooking methods may destroy several nutrients present in the food as well and the losses its nutritive value. यही मैंने डिसएडवांटेज में अभी डिस्कस किया था. ओवर कुकिंग से बहुत से जो फूड की है न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है. क्लियर. ये ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया था. एंड अनदर वन मोर पॉइंट, अनदर पॉइंट बताया था, वॉश द वेजिटेबल बिफोर कटिंग एंड आफ्टर कटिंग इफ यू wash the vegetable, then again the nutritive values of the food is less. So before cutting you wash the vegetables. अब है फ्रूट एंड वेजिटेबल. अब रा की बात करते हैं. अभी हमने कुक की बात की थी. अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कुक्ड फूड की बात नहीं कर रहे हैं. नाउ वी आर टॉकिंग द रा फूड. सो देयर आर सम फूड आल्सो व्हिच वी कैन ईट रा. ठीक है. कैरोट है, रेडिश है, कुकुम्बर है. ठीक है. सो कैबेज है. सो दीज फूड वी शुड बी ईटन एज रा आल्सो. आप इन्हें बिना कुक किए भी खा सकते हो. ठीक है. आप इन्हें बिना कुक किए भी बेटा खा सकते हैं इन फूड्स को. दैट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. So when we are talking about the raw foods, so fruit and vegetables like fruits and vegetables like carrot, radish, cabbage, and cucumber
should be eaten raw. And what is the reason? Why should we eat this food as a raw? Especially the names are given: radish, cabbage, and cucumber should be eaten raw. Okay, what is the reason? Reason is that these food contains lot of vitamins and minerals. तो जब हम इसे कुक करेंगे, हीट करेंगे, तो बहुत से न्यूट्रिशियस न्यूट्रेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, सो इसकी भी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत लेस हो जाएगी, बिकॉज दीज फूड vitamins, lot of vitamins and minerals are present in this food. So if we cook it, so what happen? These nutrient values will destroy by heat. हीट से जो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. सो अब देखो, कुक्ड फूड की बात कर ली, फिर रा फूड भी हमने आज डिस्कस कर लिया. रा फूड में आगे आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लाइक कैरोट, रेडिश, कैबेज एंड कुकम्बर शुड बी ईटन रा, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन मिनरल्स होता है. एंड इफ़ यू अप्लाई द हीट, तो इसकी जो न्यूट्रेंट वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय होता है. ठीक है, दैट इज द रीज़न बोला है कि इसे अब आप ऐसे रा खाइए, कच्चा खाइए. ठीक है. Now healthy food habits, we will discuss now healthy food habits. So healthy food habits, as we know that we should wash our hand before eating the food and even after eating the food. So it's a time of COVID-19, lot of precautions, lot of things you will see that is shown in the television also. What you will do, how you can save yourself, because as I told you, these are microorganisms, we are unable to see them. ये सब क्या है? माइक्रोऑर्गेनिज्म है, इनको हम देख तो सकते नहीं हैं. So that is all the time it is shown in the TV that whenever you go outside and when you come back to your home, so wash your hands regularly आप अपने हैंड वॉश करेंगे सोप से. ठीक है. So all the why we are doing this, to ignore, so that the microorganism, ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है, बाई चांस आप वॉश करोगे हैंड प्रॉपरली, तो वो वहीं पे माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे? आपके हैंड से जब सोप से वॉश करोगे तो वो किल हो जाएंगे. ठीक है. अगर आप हैंड वॉश नहीं करते हो, बाई चांस यू आर ईटिंग विद द सेम हैंड, तो दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म विल इंटर योर बॉडी, ये आपके बॉडी में भी इंटर कर जाएंगे, एंड यू विल सफर फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस. यू विल सफर फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस. So next is wash your hands. Wash your hands. Wash your hands before and after eating. Before and
you must student wash your hands before and after eating the food. Second point, always eat clean and fresh food. Always, always eat clean, always eat clean and fresh food. क्योंकि अगर वो फ्रेश फूड नहीं होगा, देखो सबसे बेटर मेथड ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो गई अगर फूड में, तो आप सबसे पहले क्या है उसको स्मेल करके देखो, उसमें से बदबू आने लगती है अजीब सी, जैसे खाना बनता है तो भी उसकी महक आती है, वो बहुत अच्छी महक होती है। बट बाई चांस द फूड अगर उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जम्स ने अटैक कर दिया है, तो आप उस की स्मेल लोगे ना तो वो बड़ी गंदी बदबू टाइप की बहुत अजीब स्मेल है। तो इट मीन्स दैट फूड इज कंटेमिनेटेड फूड, ऐसा फूड क्या दूषित फूड है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो ऑलवेज ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड। वॉश वेजिटेबल्स, ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। वॉश वेजिटेबल बिफोर कटिंग, कटिंग से पहले वेजिटेबल्स को वॉश करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल पहले भी वॉश करते हैं, कट करके भी वॉश करते हैं, इससे बहुत से न्यूट्रिएंट वैल्यूज जो होते हैं फूड के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वॉश वेजिटेबल्स, wash vegetables before and never after cutting them. Next point, avoid eating junk food. See student, these junk food do not have any न्यूट्रेंट वैल्यूज। ये जो जंक फूड आप लोग खाते हो ना, मैगी है, चाउमीन है, पिज्जा है, सो दीज फूड डू नॉट हैव एनी न्यूट्रिटिव वैल्यूज। हाँ, दैट इज द अनदर थिंग, दीज फूड आर वेरी टेस्टी टू ईट। बच्चों को रोज दे दो चाउमीन को, रोज खा लेंगे, दे डोंट वांट टू ईट चपाती, they don't want to eat chapati, but if you give them one plate of chopping or maggi daily, they will very happily they will eat that things. So student, the most important thing is that ignore junk food. This type of food do not have nutritive value, nutritive value इस food में नहीं होती है। और आप यंग एज में आपको कार्बोहाइड्रेट भी बहुत चाहिए अपनी डाइट में, आपको प्रोटीन भी बहुत चाहिए अपनी डाइट में, क्योंकि आपका ग्रोइंग पीरियड है जी। अगर इस पीरियड में आप इसी तरह जंक फूड्स खाते रहे, और जंक फूड से हम बहुत फैट भी हो जाते हैं, ओबेसिटी हो जाती है, ठीक है। तो इग्नोर ईटिंग जंक फूड, अवॉइड ईटिंग जंक फूड। Chew your food well. Chew your food well. देखो फूड को चबाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम और फूड को खाने के बाद जो हम लोग माउथ में जो च्यू करते हैं, उससे चबा चबा के उसके और स्मॉल 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 पीसेस करते चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स लास्ट में किसमें मिक्सअप होते हैं, ब्लड में जाके मिक्सअप होते हैं। तो इसलिए प्रॉपर और बेटर डाइजेशन के लिए वी शुड प्रॉपरली च्यू द फूड। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट।